Welcome back to SST class of 6th. Children, in my previous video, I was explaining you the chapter number 8 of history, the first empire and Ashoka. It is our subject enrichment chapter. Okay. So, in my previous video, I had covered the topics about the Kalinga War, then the Ashoka Dhamma and his extension of the empire. Okay, in today's class, I will be telling you about the further topics, that the welfare measures adopted by Ashoka, then his administration and the decline of Ashoka. Okay, so children, let's get started with our topic today. So children, please open page number 60. Welfare measures. Welfare measures means steps and welfare means अच्छाई के लिए. ऐसे steps जो अशोका ने अपने प्रजा के लिए, उनकी भलाई के लिए किया, वो क्या थे? From the edicts of Ashoka, it is clear that he was deeply concerned about the welfare of the people of his empire. So from the edicts, जो उन्होंने edicts रॉक इंस्क्रिप्शंस थे जिसपे उन्होंने लिखवाया था, उससे पढ़ के ये पता चलता है कि ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो उसके एम्पायर के लोग थे उनके लिए बहुत कंसर्न था. अशोका प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड बिल्ड रोड्स. और उसने अपने राज्य के दोनों साइड रोड के प्लांट्स लगवाए, रोड्स बनवाए. For travelers, he constructed rest houses, धर्मशालास along the roadside. और जो ट्रैवलर्स जो दूसरी कंट्रीज से आते थे या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उनके लिए उन्होंने क्या बनवाया? धर्मशाला बनवाया, रेस्ट हाउस बनवाया. He built hospitals for human beings as well as for animals. उन्होंने कई हॉस्पिटल्स भी बनवाए for human beings and for animals also. A large number of wells were also dug. ढेर सारे कुएं खुदवाए गए. Ashoka regularly visited his subjects and tried to solve their problems. And on the daily basis, Ashoka अपने राज्य में जाते थे और अपने जो उनके subjects यानी कि प्रजा थे, उनकी problems को सुनते थे और solve करते थे. Ashoka did his best to ensure the happiness of the people of his empire. Ashoka ने जितना हो सका उतना अपने empire के लिए किया. So he was a very good and caring king. Now the administration. How was the administration during the Mauryan Empire or during the Ashoka period? Kautilya's Arthashastra give us detailed information about the Mauryan administration. As I have told you, Mauryan information का 3 sources है. पहला है अर्थशास्त्र written by Kautilya, second one is Megasthenes Indica written by Megasthenes and the third one is rock edicts. Okay, तो अर्थशास्त्र से पढ़ के, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, उससे हम मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं. द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 4 एडमिशन. अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन 4 डिविजन्स में डिवाइडेड था. पहला है प्रोविंशियल, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. ओके, सो However, the city of पाटलिपुत्रा had its own administration. और जो उनका कैपिटल सिटी था पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है, उसका अपना अलग से ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था. अब आते हैं सबसे पहले सेंट्रल में. द एम्परर वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. सेंट्रल में एम्परर जो था सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन था. ही टुक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द एम्पायर. एम्पायर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते थे वो सारा एम्परर लेते थे. Emperor Ashoka also traveled extensively to gain a first-hand account of what was happening in his empire. और अशोका अपने राज्य में दूर दूर तक ट्रैवल करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, what is going on or happening. He was also consulted by his ministers and time to time he discussed with his ministers. His council of ministers acted as king advisors. और उनके जितने भी मंत्री थे, council of ministers थे, वो time to time king को advise करते थे as a advisor. Second one is provincial. The empire was divided into 4 provinces, each under a prince. और पहले तो सबसे पहले सेंट्रल था जिसको किंग देखते थे, उसके बाद सेकंड हुआ प्रोविंशियल. प्रोविंशियल को 4 प्रोविंस में डिवाइड किया गया जो कि प्रिंस, उनके राजकुमार देखते थे. द प्रिंस वॉज
insisted by many officers in the province। और जो प्रिंस थे उनको कई सारे जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे वो उनको असिस्ट, उनकी हेल्प करते थे। ही रूल्ड द प्रोविंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। और वो प्रोविंस को रूल करते थे जो कि किंग द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। देन थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंस को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। द डिस्ट्रिक्ट हेड वॉज कॉल्ड प्रदेश। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको प्रदेश कहते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय द युक्तास एंड द राजुकास। और उनको कौन हेल्प करता था? युक्तास और राजुकास। ओके, दीज ऑफिसर्स कलेक्टेड टैक्स, वर्कड एज जजेस एंड केप्ट रिकॉर्ड्स। तो ये लोग क्या करते थे? लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और जज का भी काम करते थे। अगर कोई इश्यू हो जाए तो उसको सॉल्व भी करते थे। दे ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और साथ ही साथ वो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे। देन द लास्ट वन इज विलेज। पहला है सेंट्रल, सेकेंड है प्रोविंशियल, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट एंड फोर्थ वन इज विलेज यानी कि गांव। अ डिस्ट्रिक्ट हैड मेनी विलेजेस। कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होता था, तहसील होता था, उसमें कई सारे विलेजेस होते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज वॉज द हेडमैन। और जो उनका हेड होता था वो कौन होता था? हेडमैन। विलेजेस असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मार्किंग द विलेज बाउंड्रीज, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और जो विलेजेस थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्या करते थे? हेल्प करते थे ताकि वो लैंड का जो रिकॉर्ड है मेंटेन कर सके, टैक्सेस क्या है कलेक्ट करने में हेल्प करते थे, बाउंड्रीज खींचने में मदद करते थे। Now, the city of Patliputra, that is capital. Okay. According to Indica, written by Megasthenes, the capital city of Patliputra was large, beautiful, and impressive. तो अगर हम इंडिका पढ़ेंगे जो कि मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, उसमें ये मेंशन है कि जो पाटलिपुत्रा सिटी था वो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर था। ओके, It was surrounded by a wooden wall which had 64 gates and 570 towers। और उस बुक में लिखा है कि इसके चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनी थी जिसमें 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे। There was also a moat around the city for safeguarding it enemy from enemy attacks। साथ ही साथ एक मोट था जो कि एनिमी के अटैक से उनको बचाता था। Houses were made of bricks and wood, while the palaces were made of stone। जो आम लोगों का घर था वो ब्रिक्स और लकड़ी का बना होता था, बट पैलेस यानी कि महल जो था वो स्टोन से बना होता था। A committee of 30 members looked after the administration of the city and 30 members की जो कमिटी थी वो मिलके क्या करते थे? सिटी को एडमिनिस्टर करती थी। This committee was further divided into 6 boards, each consisting of 5 members। और ये कमिटी फिर 6 बोर्ड में डिवाइड हो जाती थी और हर बोर्ड में 5-5 मेंबर्स होते थे। और हर बोर्ड की क्या ड्यूटी होती थी? पहला, कलेक्शन ऑफ टैक्स को कलेक्ट करना। सेकेंड, इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है उनको चेक करना कि वो सही है कि नहीं। थर्ड, इंडस्ट्रीज को देखना। फोर्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार कैसे चल रहा है। फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने लोग बर्थ कर रहे हैं, कितने लोग का डेथ हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना। एंड सिक्स्थ वन इज कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स। जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। नाउ, हाउ वॉज द आर्मी ड्यूरिंग द अशोकन period? Historians consider the Mauryan army as one of the remarkable armies of that time। Historians का ऐसा मानना है कि जो मौर्यन आर्मी थी बहुत ही बेस्ट आर्मी थी अपने समय की। It consisted of foot soldiers, horses, elephants and chariots। उनकी आर्मी में सब कुछ था, पैदल सेना थी, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे, साथ ही साथ चैरियट यानी कि रथ भी थे। The सेनापति was the head of the army। So who was the head of the army? सेनापति। There was an espionage system and the spies were probably used for bringing information from distant places। और जो spies मतलब जासूस, जो जासूस होते थे वो दूर दूर से खबर ले आते थे, तो वो जासूसी भी चलती थी उस टाइम।
A separate department of looked after the production of weapons. और एक separate department था जो कि weapons यानी कि जो औजार है, जो असलहे हैं, बंदूक है या जो भी है whatever it is, उनकी देखरेख करते थे. Now revenue, that is the collection of tax. Ashoka's empire was huge and it was expensive to maintain it. तो अशोका का एम्पायर बहुत ह्यूज था जिसके लिए खूब सारे पैसे चाहिए थे उसको मेंटेन करने के लिए. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू. इट वॉज फिक्स्ड बिटवीन 1/4 and 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. और ये फिक्स किया गया था 1/4 या 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की कैसा सॉइल है. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो 1/6 लेते थे, कम फर्टाइल है तो 1/4 लेते थे. ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड इन अशोकाज एम्पायर एंड इट वॉज गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल. और उस टाइम ट्रेड बहुत अच्छा डेवलप हुआ था जिसके कारण अशोकन को अच्छा खासा टैक्स मिलता था. पाटलिपुत्र, ब्रोज, उज्जैन एंड तक्षशिला वेयर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग centers. Okay, then overseas trade was carried on with Sri Lanka, Rome, Egypt and China. और overseas समुद्री रास्ते से ट्रेड किया जाता था with other countries like Sri Lanka, Rome, Egypt and China. Okay, Arthashastra clearly maintains about several taxes like forest, mines and water tax. और अर्थशास्त्र में और भी सारे टैक्सेस मेंशन है जैसे कि फॉरेस्ट का जो टैक्स लगता था फॉरेस्ट गुड्स बेचने पे, टिम्बर पे, देन माइंस माइनिंग करने पे, और वाटर टैक्स भी लगता था. ऑल द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्स वाज स्पेंट ऑन पेइंग सैलरीज टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, चैरिटीज, बिल्डिंग रोड्स एंड हॉस्पिटल्स एंड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी. और जितना भी इनकम होता था, जितना भी टैक्स आता था, चाहे फॉरेस्ट से, चाहे लैंड से, चाहे ट्रेड से, वो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी. पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़, हॉस्पिटल्स बनाने में, धर्मशाला बनाने में, रोड्स बनाने में और आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता था. ओके, नाउ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. कैसे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, खत्म हुआ वो. After the death of Ashoka in 232 BCE, a series of weak rulers took charge of the Mauryan Empire. और जब अशोका की डेथ हो गई 232 BCE में तो कई वीक रूलर्स आए मौर्यन एम्पायर में. The governors of distant provinces took advantage of their weakness and declared independence. और जो दूर दूर के अलग राज्यों के किंग्स थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और अपने आप को आजाद कर लिया. The entire administrative system deteriorated, ultimately leading to the disintegration of the empire. जिसके कारण जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी धीरे धीरे क्या हो गई? डिटोरिएट होने लगी, मतलब कमजोर होने लगी और फाइनली डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई मौर्यन एम्पायर. The last Mauryan ruler, that was Brihadratha, was killed by the commander in chief of his army. और जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथा, ही was killed, उनके ही सेनापति कमांडर इन चीफ ने ही उनको मार दिया. पुष्यमित्रा संगा इन 185 BC. ठीक, this brought an end to the rule of the Mauryan dynasty and paved way for the foundation of Sanga dynasty. इस तरह मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ बृहद्रथा बाय द पुष्यमित्रा संगा इन 185 BCE. और उसके बाद नई डायनेस्टी आई जो कि संगा डायनेस्टी आई. ओके चिल्ड्रन, so our chapter is finished. In today's class we have studied about the welfare measures, then about the decline of the Mauryan Empire. Okay, so in my next class children I will be discussing the question answers of the chapter and exercises of the chapter. So children, today's homework is question number 1. The Mauryan administration was divided into how many divisions? Question number 2. What was the duty of each board? Question number 3 is, which book gives us detailed information about the Mauryan administration? Question number 4 is, who killed the Brihadratha? And question number 5 is,
who was the Pradesh? So children, these 5 question answers you have to note down in your homework copy in a neat and clean handwriting. And our chapter is finished. So just go through the chapter, read it, underline the important points and learn and write all the key terms of the chapter. In my upcoming video, I will be discussing the exercises and question answer of the chapter. Okay, so that's all for today and I hope that you all have understood it very well. Take care of yourself. Thank you class.